کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ نچن والی دے پتر آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اگر جناب یہ جملہ ہوں الٹ ہوئے گا، نچ نچ کے اپنے پیر تے بابیاں نو مناون والے دے پتر آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ ابھی اہم ترین خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ کابینہ نے ضابطے کی کارروائی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو احکامات جاری کر دیے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلم اکیڈمی کی طرف سے تمام بھائیوں کو سلام۔ آخر کار جس فیصلے کا بڑی شدت سے انتظار تھا وہ آ ہی گیا۔ وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی۔ الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس فیصلے پر، اور پر امید ہیں کہ مستقبل میں ہمارے بڑے ایسے تجربات سے اب گریز کریں گے اور اس ملک عظیم کو اسی طرح درست سمت لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان زمبش سے وطن عزیز کے غیور مسلمانوں کی جان چھوٹی۔ جب سے یہ لوگ سیاسی جماعت کی شکل میں ہم پر مسلط ہوئے ہیں، کتنے معصوم پاکستانی ان کی سیاست کے بھینٹ چڑھ گئے، کتنے بے قصور پاکستانیوں کو ان زمبش نے مذہب کی آڑ میں کاٹ ڈالا۔ کہنے کو تو یہ ایک سیاسی جماعت تھی، لیکن کیسے یہ بھولے بھالے لوگوں کے جذبات سے کھیلتی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر یہ سیاست کرتے۔ مجھے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات یاد آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے یہ ہمارے منہ پر یہ چڑھ کر لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے تھے اور کہتے کیا میں یہودی ہوں، کیا میں کافر ہوں؟ او بھائی، میں بھی مسلمان ہوں، ہمارے اندر تم سے زیادہ عشق رسول ہوگا، پر ہم تمہاری طرح سیاست میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال نہیں کرتے۔ خیر، میں سمجھتا ہوں اس فیصلے سے بہت فرق پڑے گا اور آئندہ یہ مذہبی گنڈے اپنے بلوں سے باہر دوبارہ کبھی بھی نہیں آ سکیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو انجینئر کو پھنسا کر ان کی اکیڈمی بند کروا کر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آج خود اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئے۔ یہ چندہ خور مولوی، اب آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ سعد رضوی کے گھر سے جو رقم وغیرہ برآمد ہوئی، اب جواب دینا پڑے گا کہ ایک امام مسجد کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ میری دعا ہے ٹی ایل پی کے ان ورکران کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور وہ بھی سمجھ سکیں ایک عام امام مسجد جس کی تنخواہ کتنی سی ہوگی، اس کا لائف سٹائل تو دیکھو، گاڑیاں، کروڑوں روپے، ان سب کو جسٹیفائی کیسے کرے گا وہ بندہ؟ او بھائی، یہ چندہ دھندا گیم ہے، خدا را ہوش کرو۔ آخر میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ان مذہبی دہشت گردوں کو نکیل ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ خیر، آخر میں کچھ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی آئے ہیں، وہ بھی دیکھتے جائیں۔ السلام علیکم، میرا نام سمیع اللہ ہے، میں لدے والا بڑیچ حفظ آباد روڈ گجرا والا کا رہن والا ہاں۔ میرا طریقہ لبیک دے نال کوئی تعلق نہیں، جہاں پوسٹاں وغیرہ کیتیاں نے غلطی دے نال ہو گئی نے، تے میں اپنی غلطی دی اداریاں تو معافی چاہنا ہوں۔ السلام علیکم۔ میرا ٹی ایل پی سے کوئی اب تعلق یا واسطہ نہ ہے۔ میں آج سے کے بعد ٹی ایل پی سے باضابطہ طور پر علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ میں پاکستان اور اداروں کے خلاف کسی قسم کی بات کی مذمت کرتا ہوں۔ میرے لیے پاکستان محترم ہے اور پاکستان کے تمام ادارے بھی محترم ہیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وآلہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرا نام میاں اویس طاہر، 189 آر بی رسول پور، تحصیل جاگ جمرہ، ضلع فیصل آباد، اور پی پی 98 میں نے 2024 میں ٹی ایل پی کی طرف سے الیکشن لڑا تھا، اور یہ میں نے آج جو فیصلہ کیا یہ میں نے میرا ذاتی فیصلہ ہے، میں کسی کی پریشر میں آگے یہ فیصلہ نہیں کر رہا کہ میں آج کے بعد سیاست کو بات کہہ رہا ہوں۔ میں کسی بھی جماعت کے ساتھ، چاہے ٹی ایل پی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، جو بھی ہو، میرا کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں آج کے دن کے بعد کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں رکھوں گا، اور میں اپنا بزنس کروں گا اور اپنے گھر والوں کو ٹائم دوں گا۔ یہ میں نے پیغام جو ہے یہ میں دوستوں تک پہنچانا چاہ رہا تھا،
तो ये मीडिया वालों का शुक्रिया, ये सब दोस्तों का, उन्होंने ये मेरे लिए एक खुशी टाइम निकाला। और ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि आज के दिन के बाद मैं कोई भी सियासी एक्टिविटी नहीं रखूंगा और ना मेरा सियासत के साथ कोई तल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। इस टाइम मेरे साथ कारी मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद है, जिन्होंने एक मजहबी जमात के साथ लातल्लुकी का इजहार करने के लिए मुल्तान प्रेस क्लब में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जो उन्होंने इस जमात की मजम्मत की है। बताइएगा कि क्या वजह बनी, आप पहले इस मजहबी जमात का हिस्सा थे और अब अगर आप लातल्लुकी का इजहार कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह? इस मजहबी जमात के साथ लातल्लुकी का वजह यह है कि इन्होंने जो पाकिस्तान की रेट को चैलेंज किया है, ये एक अफरा तफरी का जो माहौल पैदा किया है, पाकिस्तान के सरकारी इदारों को, सरकारी इमलाक को जो नुकसानात पहुँचाए हैं, इस वजह से इस जमात से लातल्लुकी का ऐलान किया। हम एक पुरअमन शहरी हैं और हमें पुरअमन तरीके से अपने मुल्क के अंदर रहना चाहिए। उस वक़्त इन्होंने ये सारे मामलात किए जब गज़ा के अंदर भी अमन हो चुका था, और दूसरी साइड पे हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की भी दखल अंदाजी कर रहा था। तो हमें इस वक्त पुरअमन रहना चाहिए था, जो हमारे ये हुआ ये नहीं होना चाहिए था। क्या आपने 3 मुअल्लिम रखे हुए हैं, तो वो जो मुअल्लिम है उनकी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, जो हदिया आप उन्हें देते हैं, वो माहाना कितना है? एक को 18,000 रुपये देते हैं, किसी को 17, किसी को 16,000 रुपये। वो अहले इलाके की मामनत से हम ये इदारा चला रहे हैं। तो अभी आपने भी वीडियोस देखी होगी कि साद रिजवी साहब के घर से करोड़ों रुपया मिलता है, लाखों रुपया मिलता है, ठीक है, मुल्की गैर मुल्की करेंसी मिलती है, सोने की चीज़ें मिलती है, गड़ियाँ मिलती है। एक इमाम मस्जिद के घर, एक इमाम मस्जिद की इतनी कैपेसिटी होती है, जेब इजाज़त देती है कि वो इतनी चीज़ें ख़रीद सके। उसके घर से आप बता रहे हैं कि 18,000 आपके पास जो मुअल्लिम है उनकी तनख्वाह है। तो क्या वो ये अगर उनके घर की पुलिस तलाशी ले, उनके घर से महंगी तरीन गड़िया, मुल्की गैर मुल्की करेंसी बरामद होगी? नहीं, इमाम मस्जिद तो बेचारा जो तनख्वाह मिलती है वो अपनी उस तनख्वाह से अपने घर का बड़ी मुश्किल से गुज़र औकात करता है। तो मेरे ख़्याल में हमारे पास जो असातिज़ा कराम है, उनकी तनख्वाह जो है उनसे वो अपने घर की बड़ी मुश्किल से ये करते हैं। ये जो मामलात हुए हैं मीडिया पे हम भी देख रहे हैं, ये सब कुछ हुआ है, तो इसकी हमें तो खुद समझ नहीं आ रही। हम अपना इदारा चला रहे हैं। आपका वैसे ज़हन क्या कहता है? आप भी इदारा चला रहे हैं, लोग आपको भी हदिया दे के जाते होंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आ सकते हैं? इतना ज़्यादा हदिया आता है फिर तो सब असातिज़ा के पास, सब इमाम मस्जिद के पास V8 हो, लैंड क्रूज़र हो। देखिए जी, हम तो इदारा चला रहे हैं, हमारे पास तो हम अपने असातिज़ा कराम की तनख्वाहें और बच्चों के अखराजात बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं। तो ये तो मैं तो क्या कहूँ उनके बारे में, साद हुसैन के बारे में या उनके घराने के बारे में, कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता, वो जब सामने आएंगे तो हम इदारा चला रहे हैं। हमारे पास तो इतना कुछ भी नहीं है, तो हमें भी खुद समझ नहीं आ रही कहाँ से आता है, कौन देता है, कैसे ये सोने की ईंटें निकली, ये सारा कुछ निकला। वो तो जब सामने आएंगे वो खुद ही बताएंगे किधर से आता है, कौन देता है। यानी कि चंदे के पैसे से इतना सब कुछ नहीं हो सकता, हदिये के पैसे से नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा मदरसा बड़ी मुश्किल से चल रहा है, मैं एक इदारे का मोहतमिम हूँ, मेरे पास 3 असातिज़ा कराम है, मामलात है। तो आपने देखा कि मुरीद के में जो सारा हादसा होता है कि कई दर्जन पुलिस वाले ज़ख्मी होते हैं और एक SHO शहजाद नवाज़ जो है वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं। अब उनके 3 बच्चे हैं, वो बच्चे सवाल कर रहे हैं कि हमारे वालिद का क्या कसूर था, वो वहाँ पर अमन व अमान को बहाल रखने के लिए मौजूद था, उसका ये कसूर था। आप क्या समझते हैं कि एक पुलिस वाला ड्यूटी पर मौजूद है, अपनी किट पहन के APV गाड़ी से उसे 20 से 25 लोग निकालते हैं और उसके बाद उस पर हमला कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर गोलियां लगने से वो शहीद हो जाते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? एक बंदा अपनी ड्यूटी पर तैनात है, उसे निकालना इस तरह का। देखिए जी, ये मामलात धरना था, उन लोगों ने किए हैं, ये गलत हुए हैं। हम इन तमाम मामलात की मुस्तरद करते हैं। अब उन बच्चों को लोग क्या जवाब देंगे जो बच्चे यतीम हो गए हैं? ऐसे ही है, ठीक है। वो लोग तो उनकी हिफाजत के लिए खड़े थे, अपने मुहाफ़िज़ों को मारा नहीं किया करते। 2 साल का बच्चा, हाँ एक 3 साल का और एक 6 अपने साल का। अपने मुहाफ़िज़ों के साथ मोहब्बत की जाती है, उनको मारा नहीं जाता। अच्छा, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है, आपको उठाया गया है, ये किसी के कहने पे की गई है, तो क्या वजह बनी, आपने की क्यों है? नहीं जी, ये मैंने इसलिए की है, एक तो जो मुल्क के अमन ख़राब करने की कोशिश की है, ये सारा मामलात देखकर इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लातल्की का ऐलान किया है। मुझे किसी ने न प्रेशराइज़ किया है, न मैं किसी के खौफ की वजह से, न किसी के डर की वजह से, न किसी और वजह से, सिर्फ इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो एक तालीमी इदारा चल रहा था, वो इदारा जो जब बदअमनी फैली है
अमन को बरकरार रखने के लिए इदारों को एक्शन लेना पड़ा, इदारा बंद हो गया। दूसरा, ये जो मुल्क के अमन को ख़राब किया है, इस वजह से मैंने ये मामलात देखकर इसलिए तहरीक से दूरी इख्तियार की है। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि जो इदारा चल रहा था लेकिन वहाँ पर ये सारी सूरत हाल की गई, चीज़ें की गई, तो वो बंद हो गया। तो क्या इस तरह सड़कों पर निकलना, रोड ब्लॉक कर देना, हम देखते हैं कि एक मरीज़ है जिसने लाहौर से मेडिसिन लेने जानी है, जब लाहौर सारा बंद होगा तो वो मरीज़ मेडिसिन कहाँ से लेगा? एक बंदा, लाहौर हब है बिज़नेस का, तो जो मार्केट्स वहाँ पर मौजूद है, ताजर बरादरी ने वहाँ पर जाना है, सामान लेना है, तो वो वहाँ पर बंद होगा, तो वो लोग सामान कैसे लेंगे? क्या इस्लाम हमारा इस चीज़ का दर्स देता है? इस्लाम तो इतना प्यारा दीन है, अमन का दर्स देता है, तो क्या जो दूसरे देखने वाले हैं वो देखेंगे कि इस्लाम के नाम पर हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं? क्योंकि हम सब आपस में मुसलमान हैं, जब एक दूसरे से लड़ेंगे क्या कोई और इस्लाम में दाखिल होगा? नहीं, देखें जी, इस्लाम तो अमन का दर्स देता है, भाईचारे का दर्स देता है। ये गलत बात है रास्ते बंद करना। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो रास्ते खुलवाए हैं, बंद नहीं किए। तो ये रास्ते बंद करना गलत है। दीन इस्लाम के अंदर रास्ते बंद करना और उम्मत मुहम्मदिया को तकलीफ़ देना, ये गलत है। अच्छा, इस पे कुरान मजीद आप मुझे बेहतर बताएंगे कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कुरान पाक में इरशाद है कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो पहले उसकी तस्दीक करो, फिर उसे आगे फैलाओ। साद रिजवी के हवाले से कहा जा रहा था कि उन्हें गोलियां लगी है, वो ज़ख्मी हो गए हैं, लेकिन बाद में ही इसी जमात के एक जो शख्स है वो सामने आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, साद रिजवी ज़ख्मी नहीं हुए, हमने उन्हें आखिरी दफ़ा मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तो ये इस तरह का प्रोपोगेंडा करना कि वो ज़ख्मी हो गए हैं, इंतशार फैलाना कि लोग निकले, जलाओ गिराओ करे, कि मुल्क जाम कर दो, इस पर क्या कहेंगे आप? ये ठीक है? नहीं, गलत है। देखें जी, एक बंदे की खातिर पूरे मुल्क को दाव पे तो नहीं लगाया जा सकता ना। जो भी लोग ये खबरें फैलाते हैं, वो झूठी खबरें फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, तो ये गलत है। ये मुल्क के अमन को दाव पे लगाते हैं, मुल्क के अमन को तबाह करने की कोशिश करते हैं और आवाम को और इदारों को सामने लाने की कोशिश करते हैं। और मेरे ख्याल में ये उनके खिलाफ ये बहुत गलत करते हैं और उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। हमारे दीन भी इजाज़त नहीं देता, मज़हब भी इजाज़त नहीं देता और हमारे मुल्क का कानून भी, माशरा भी इजाज़त नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। ये जो मजहबी जमात की जानिब से किया गया है, आप ये समझते हैं और आप इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये गलत हुआ है? जी, जो भी हुआ है मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और ये गलत हुआ है। मैं तमाम जो भी वाक़या हुआ है उसको मुस्तरद करता हूँ। और जो लोग इस वाक़े में मुलव्विस थे, आप खुद इमाम मस्जिद है, आप क्या कहेंगे इदारों को कि उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि कभी ना कभी, कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ लोग निकलते हैं, पाकिस्तान को जाम कर देते हैं, इंतशार फैलाते हैं, गिराओ जलाओ करते हैं। नुकसान आपका और मेरा है। जो आम आदमी है, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो? जो हमारा कानून और आइन इजाज़त देता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आइंदा लोगों को भी सबक आना चाहिए कि कोई बंदा मुल्क के अमन को दाव पे ना लगाए। बहुत शुक्रिया जी। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने तमाम तर कहानी इनकी ज़ुबानी जानी कि इनका कहना है कि ये जो इंतशार फैलाया गया, जलाओ गिराओ किया गया, तो इस वजह से मैंने इस जमात से ला तल्की का इजहार किया है। और मुझे बता रहे थे रफाका साहब कि ये राणे तनवीर का यहाँ ये हल्का है। मैं कहा राणे तेरे नाल मैं गल करन आया, मैं तेन सच्ची दस, बिल्कुल मैं तेरे बारे गड्डी विच बैठ के बदवा करता रहा तो पुत्ता तू बचना कोई नहीं हुण। ताड़िया लुके ते चिड़ियां मारदा रहा ना पै कले साइयां आवे तेनू बिल्कुल तेरे हल्के दे विच आके कह रहा। हाँ बिल्कुल तेनू बिल्कुल है, तेरे ते टाउट बैठे होंगे, जाके राणे नू मेरी गल इंज सुनानी जाके। और अगर तुम्हारा कोई शौक हो इस ऐलान के बाद, तुम हो तो जरी बात अमेरिका के गुलाम। फैजाबाद से अमेरिका एम्बेसडर तुम्हारे तो हर शय गीली हो गई है इस टाइम के लब्बैक वाले, हम तो हैं गुलाम हम ट्रम्प के। तो मैं का ट्रम्प जिसे साढ़े को होसी ना गल ए याद रखी, लब्बैक दे किसी कारकुन दे तू दोबारा घर आके धमकी दी ना उन्होंने वालिदैन नू ते पुत्तर मैं तेरे डेरे ते आ जाना कोई तकलीफ होगी मैं दोबारा कह मिर्जा यके जरा मेरी गल नू कवे सख्त ओ भी यके जेड़े जेड़े उनके पैरोकार ओ भी यकन। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये पुरअमन मार्च फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ इज़ारे यकजहती के लिए निकला था। अभी तक दर्जनों लोग शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हैं। हमने तो कुरान में ये पढ़ा था कि ईमान वालों के सबसे बड़े जो दुश्मन है वो यहूदी हैं, और आज हमें पता चल चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग खून और पंजाब की हुकूमत ये भी ईमान वालों की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि ये यहूदियों के आलाकार हैं। ये हमें मार कर इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं। ये किसी की गलतफहमी है कि वो गोली के जोर पर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबा सकेगा। ये किसी की खामख्याली है। कोई अंग्रेज का नौकर और अमेरिका का चाकर, यहूदो हनूत और यहूदो नसारा का कोई एजेंट अगर ये समझता है कि वो लाशें गिराकर इस नारे को दबा देगा, तो रब्बे काबा की कसम सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों सीने तैयार हैं जो गोलियां तो बर्दाश्त कर लेंगे, मगर लब्बैक या रसूल अल्लाह का परचम नीचे नहीं होने दे। जितने भी उलमाए किराम जेलों में हैं, थानों में हैं, जो कारकुनान घरों से उठा लिए गए हैं, सबको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। रहना नहीं, और ये मसला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इन्हों किसी ना किसी नुकरे लाना पैना है, ताई जाके सुकून चले जाना है। तो मेरा ख्याल है कि जो बुज़दिल है वो रोजाना मरता है, और जो बहादुर है वो जिंदगी में एक ही क्या कहने वो एक ही बार मरता है, लेकिन वो क़यामत तक फिर उसका नाम जो है वो जिंदा और ताबिंदा रहता है। बनाई थी उसके दरमियान आ चुके हैं, इनको घेर लो। ये घेर चुके हैं इस वक्त, इनका पुल पर पीछे से भी घेरा हो चुका है, और अवाम आ चुकी है, सारी मस्जिदों में ऐलान हो चुके हैं, पीछे से भी अवाम आ गई है। कैसे हैं? तो अभी एक सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी अलामा हाफिज हुसैन रिजवी साहब के ऊपर जो है ना 302 लग गई है, कत्ल की FIR होगी, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, हमें किस जुर्म में 302 होगी? कोई जुर्म भी तो होगा ना हमारा, कोई ऐसा जुर्म है? आपके जो कारकुनान अभी तक जो जाबाक हुए हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनका जो सारा मुद्दा है वो आपके ऊपर डलेगा। यार हमने ना कुछ किया है, हम घर में बैठे हुए थे, हमें इससे पहले आगे किसने शहीद किया है? फसल लाई थी, उसमें गंदी कीड़ी पै जाती ना, ऐ कोई जनाब मौसमी कीड़े पै जाते, फिर की कीता जाता, फिर जनाब स्प्रे किया जाता। ऐ पाकिस्तान साडे वड्डियां सानू बना के दे दिता, तकरीबन 78 साल हो चले, ऐसू पै गए गंदे कीड़े, ते उन्हां नू असीं लबैक दे स्प्रे नाल मार के दम रहना। पाकिस्तान दे किसी कलीदी ओहदे ते बैठे होन, या पाकिस्तान दी पार्लीमेंट दा हिस्सा होन, या पाकिस्तान दे इस्लामाबाद दे हाई कोर्ट दी किसी कुर्सी उत्ते बैठे हुए, और 1.5 फुटे पौने नू मैं कहना चाहता कि तेनू गलत फहमी है, और तू ये समझदा कि मैं गुस्ताखा नू बचा लवांगा। एक कानून सानू पता कितने जोगा, साडे कोल कानून फारूक आजम वाला मौजूद है। मैं कहता हूं शहबाजे को साहब नहीं कहना चाहिए, ये साहब नहीं है। जिसने अब जो मायदे पर साइन किया ना शाह साहब, इन्हों साहब नहीं कहना, हूं इन्हों वही कहना मैं क्या सी उधर। हां ये वही है, ए उसको ही बड़ा है, हाँ ये उसको ही बड़ा है, एक कान खड़ी है, हाँ ये उसको ही बड़ा है। हाँ मैं सही गल कर रहा है, बस साहब किस चीज का हुआ ये? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मिंबर इस्लाम के ऊपर बैठ के जो जुबान इन लोगों ने इस्तेमाल की है वो काबिल मुजम्मत है। मैं हैरान हूं कि हमारी इस्लामी नजरियाती काउंसिल, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक इस्लामिक स्कॉलर है जो दरूद पढ़ के अपना प्रोग्राम शुरू करते थे, दरूद पढ़ के खत्म करते थे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने उनके खिलाफ फैसला ले लिया, लेकिन जो अनासर, जो लोग मिंबर इस्लाम पर बैठ के गालियां देते थे, इस्लामी नजरियाती काउंसिल की आंखें बंद हो गई और उनको सुनाई नहीं दिया। तो मैंने 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी रिक्वेस्ट की थी और आज फिर से कर रहा हूं, अपने जो ताकतवर हलके हैं, ख्वाह वो एस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो या पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, जो भी है, कि इस 27वीं आईनी तरमीम का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के आइन में जो तौहीन रसालत से मुतल्लिक कानून है 295C, उसमें तौबा की शिक ऐड कर दी जाए। वैसे तो हमें उस कानून से भी कई एक चीजों में रिजर्वेशन है, हम उसको अंडर डिस्कशन नहीं लाते,
ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کنسنسس کے ساتھ اگر انہوں نے ایگری کیا ہے تو اس میں توبہ کی شک ایڈ کی جائے. اسی طریقے سے توہین صحابہ سے متعلق یا توہین اہل بیت سے متعلق جو 298A ہے اس کے اندر بھی توبہ کی شک ایڈ کی جائے, کیونکہ کوئی بھی مسلمان ایون پاکستان میں رہنے والا نان مسلم بھی کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے یا بات سمجھنے میں کوئی فرق لگ سکتا ہے, یہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اگر یہ توبہ کی شک ایڈ ہو جائے تو یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور پاکستان کو ان زومبیز نے, دہشت گرد مولویوں نے جہنم بنا دیا ہے, دیندار طبقے کے لیے بھی اور نان مسلمز کے لیے بھی, اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.